So students, today's our topic is phrasal verb, and you already know that phrasal verb is in your syllabus, 12th board RBSC. So we are studying phrasal verb carry. There are total 7 phrasal verbs in your syllabus, such as the break, bring, carry, turn, get, etc. So now today we will study about carry. So with the help of carry, we can make few phrasal verbs such as carry on, carry out, carry over, carry off, etc. So one by one we will study about them. Okay, so here we are having carry off. When we add off with carry, it becomes a phrasal verb, that is carry off. So it has two meanings. First meaning is to take away something without permission, and second meaning is to win something. As you can see on the screen, here we are having first example, the thief carried off the valuable items or the valuables means हम ये बोल रहे हैं कि जो चोर है उसने बहुत कीमती सामान या जो कीमती चीजें थी उसने चुरा ली, उसने ले ली. तो यहाँ पे हम इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं कि जो थीफ है वो परमिशन लेके तो ऑफ कोर्स करेगा नहीं, विदाउट परमिशन ही हैज डन दिस थिंग, सो देयरफॉर वी हैड यूज्ड कैरिड ऑफ. अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि कैरी जो है वो कैरिड कैसे बन गया है यहाँ पर. सो व्हेन योर क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट टेंस इट वी विल यूज कैरी, एंड व्हेन योर क्वेश्चन इज इन पास्ट टेंस वी विल यूज कैरिड ऑफ. So it will provided in your board exam paper that what you have to use, you will have two options. In two options you have to select one. So whatever given in the options, from that you have to choose one. Okay. So second example is our team carried off the championship trophy. So हम यहाँ पे टीम की बात कर रहे हैं कि हमारी टीम ने चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत ली. तो इस तरीके से हम कैरी ऑफ का टू कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी टेक समथिंग विदाउट परमिशन, एंड सेकंड कॉन्टेक्स्ट व्हेन वी विन समथिंग. Now let's see the second phrasal verb we can make with the help of carry. As you can see, it is carry on. When we add on with carry, जब हम on को carry के साथ में जोड़ेंगे, add करेंगे, तो it will become carry on. तो carry on बन जाएगा. Now let's see what are its meaning. First meaning is to continue an activity. जो हमें already पता होता है that carry on का मतलब होता है किसी चीज को continuity में रखना. To continue something, to continue an activity or whatever means you have to learn the word continue. Carry on का first meaning हमें जो learn करना है that is continue, and its second meaning we are having on the screen. You can see meaning number second, to behave in an excited, organized way. व्यवस्थित रूप से करना या व्यवस्थित रूप से चीजों को चलाना, मैनेज करके चीजों को रखना, उसे हम कह सकते हैं कैरी ऑन. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग जो आपको लर्न करके रखना है दैट इज टू कंटिन्यू समथिंग. कैरी ऑन मीन्स टू कंटिन्यू समथिंग. किसी चीज को कंटिन्यूटी में रखना, किसी चीज को लगातार रखना, उसे हम कैरी ऑन से समझ सकते हैं. नाउ हाउ यू हैव टू यूज दिस meaning in sentence. Let's see. First example, she must carry on despite the pain. She must carry on despite the pain. She must carry on despite the pain. Despite means होता है बावजूद, तो उसे दर्द के बावजूद जारी रखना पड़ा. तो इस टाइप के एग्जांपल्स जो होते हैं वो आप मेक कर सकते हो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ कैरी ऑन फ्रेजल वर्ब. और व्यवस्थित रूप से अगर हम इसको समझते हैं तो another example is already given. They carry on their business very efficiently. उन्होंने अपना बिजनेस बहुत ही efficiently तरीके से carry on किया. तो carry on से हमें two meanings हम derive कर सकते हैं. First meaning that is to continue something, and second meaning to manage something in a proper way. So our third phrasal verb is carry out. So its first meaning is to perform or complete a task, instructions or rules. किसी टास्क को परफॉर्म करना, रूल्स को परफॉर्म करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उसको हम कैरी आउट से समझ सकते हैं. इट्स सेकंड मीनिंग इज आल्सो पालन करना, टू फॉलो सम ऑर्डर्स, नियमों को फॉलो करना. तो दीज ऑल मीनिंग आर कनेक्टेड विद कैरी आउट. रूल्स फॉलो करना, टास्क फॉलो करना, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उसको हम कैरी आउट से समझ सकते हैं. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज द स्टूडेंट carried out the teacher's instructions. So you can see how beautifully we had used the phrasal verb carried out. कि जो स्टूडेंट है उन्होंने टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को कैरिड आउट किया, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस टीचर ने दिए उनका पालन किया स्टूडेंट ने. तो यहाँ पर हमने इसीलिए फ्रेजल वर्ब यूज करी है कैरिड आउट. सेकंड एग्जांपल, इफ यू सी द फैमिली कैरिड आउट द डॉक्टर्स एंटायर प्लान. द फैमिली कैरिड आउट द डॉक्टर्स एंटायर प्लान. जो फैमिली थी उसने डॉक्टर की पूरी योजना, जो भी उसने प्लान बताया, उसको कैरिड आउट किया, उसको फॉलो किया. तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कैरी आउट का मीनिंग होता है टू फॉलो सम ऑर्डर्स, टू फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो हियर वी आर हैविंग अवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट इज कैरी ओवर. सो कैरी ओवर इंग्लिश मीनिंग के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे पोस्टपोन. कैरी ओवर इक्वल्स टू पोस्टपोन. किसी चीज को पोस्टपोन करना, किसी चीज को टालना. और कैरी ओवर ज्यादातर हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं? हम इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में, हम डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, हम रूल्स के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं कि आप किन किन चीजों को टाल सकते हो इन अ फॉर्मल मैनर. हम जैसे डिसीजन को टाल सकते हैं, कुछ समय के लिए पॉज दे सकते हैं, तो हम वहां पर यूज करेंगे कैरी ओवर. नाउ सी एग्जांपल, we had to carry over the final decision to next week's meeting. We had to carry over the final decision to next week's meeting.
हमें फाइनल डिसीजन को अगले वीक होने वाली मीटिंग तक कैरी ओवर करना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारा डिसीजन है हम उसको अभी नहीं बता सकते, हमें उसको अगले हफ्ते तक टालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यूज किया है हमारी फ्रेजल वर्ब को कैरी ओवर। तो इस तरीके से आप कैरी ओवर का यूज कर सकते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीजंस, रूल्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा। बेसिकली कैरी ओवर मतलब टालना, स्थगित करना या पोस्टपोन करना। तो लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब एंड नेक्स्ट इज कैरी अवे। एंड दिस इज पर्सनली माय फेवरेट। कैरी अवे मींस टू अट्रैक्ट, टू चार्म, लुभाना बेसिकली। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं, या कुछ भी कोई भी क्वालिटी आपकी हो सकती है जो बहुत अट्रैक्टिव है, जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे कैरी अवे। कैरी अवे मींस अट्रैक्टिव। Okay, so here we are having an example. Her performance was so enchanting that it carried the entire audience away. उसका परफॉर्मेंस इतना enchanting था, इतना अच्छा था, इतना अट्रैक्टिव था कि जितनी भी ऑडियंस थी सारी की सारी उसके साथ में कैरिड अवे हो गई। तो यहाँ पे कैरिड अवे का मीन्स क्या निकल रहा है? अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा चार्मिंग, बहुत अट्रैक्टिव। सो यू हैव टू लर्न कैरी अवे इक्वल्स टू अट्रैक्टिव और चार्मिंग। So the last phrasal verb which we can make with the carry, that is in your syllabus, and that is carry through. So first we will understand its meaning. So to continue a task until it is completely finished, even if it is difficult. किसी डिफिकल्ट टास्क को completely finish करना, डिफिकल्ट होने के बाद में भी आपने किसी टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, वहां हम यूज कर सकते हैं हमारी फ्रेजल वर्ब दैट इज कैरी थ्रू और कैरीड थ्रू। प्रेजेंट फॉर्म कैरी थ्रू एंड पास्ट फॉर्म कैरीड थ्रू। सो लेट्स सी इट्स यूज इन एग्जांपल। They must carry through their studies to pass the final exam. उनको फाइनल एग्जाम पास करने के लिए उनकी स्टडीज को कैरी थ्रू करना पड़ेगा। तो हमें पता है फाइनल एग्जाम डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे हम डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे हैं। कोई चीज डिफिकल्ट है, आप उसको पूरा कंप्लीटली फिनिश करने की बात कर रहे हो, तो हम यूज करेंगे कैरी थ्रू। We are having a practice sheet which is based on the phrasal verb carry. First important point I would like to suggest you is that have some patience. पेशेंस रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से हमें रीड करना है, हमारे ऑप्शंस हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है वो हमें रीड करना है, देन हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। सो अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यू कैन डैश योर वर्क विदाउट फियर। हम यहाँ पर वर्क की बात कर रहे हैं कि बिना डर के आपको अपना काम डैश जो भी आप फिल करोगे। सो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। सो वी आर हैविंग ऑप्शन कैरी ऑन, कैरी ऑफ। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? हमने अभी भी पढ़ा है कि जो कैरी ऑन फ्रेजल वर्ब है, कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू एंड कैरी ऑफ मीन्स विदाउट परमिशन डूइंग समथिंग और टू विन समथिंग। सो फ्रॉम बोथ ऑफ द ऑप्शंस विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? So its correct answer is carry on. Carry on. You can carry on your work without fear. Second example. He dash most of the prizes. So students, if you notice here in this sentence, we are talking about prizes. हम यहाँ पे prizes की बात कर रहे हैं. उसने बहुत सारे prizes कर लिए. Options we are having carried through. First option is carried through. Second option is carried off. So its correct answer is carried off. So carried off हमारे पास में अभी जो हमने डिस्कस किया था, कैरिड ऑफ के टू मीनिंग्स होते हैं। फर्स्टली हम इसको यूज करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम किसी चीज को जीतते हैं, टू विन समथिंग, और सेकंड हमारा कॉन्टेक्स्ट रहता है टू हैव समथिंग विदाउट परमिशन। तो इसमें हम प्राइजेस की बात कर रहे हैं, तो इसका मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा कैरिड ऑफ, क्योंकि जो कैरिड थ्रू होता है, कैरिड थ्रू जो होता है उसका हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? किसी टास्क को कंप्लीट करना विद डिफिकल्टी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से जिसके ज्यादा चांसेस है हमें वो सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट के माइंड की एक मेंटलिटी होती है जिसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर्स को गलत ही कर आता है, और वो मेंटलिटी ये होती है कि वो ये देखता है कि हमें दोनों में से कौन कौन से सही है। आपको ये नहीं करना है। अगर आप ये करोगे, ये सोचोगे कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको दोनों ही सही लगेंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि दोनों में से गलत कौन सा है। यू हैव टू फाइंड द एरर. You have to find the error, and with the help of this strategy, you have the probability, you have the power to do questions correctly in your exam. तो आपको इस मेंटलिटी का यूज करना है कि हमारे पास में जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। यू हैव टू फाइंड द एरर. तो सबसे पहले हम इसमें एरर फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि जो कैरिड थ्रू होता है, कैरिड थ्रू का मीनिंग क्या हमने पढ़ा? किसी चीज को डिफिकल्टी के साथ करना। तो यहाँ पे कौन सी डिफिकल्टी की बात हो रही है? हम तो यहाँ पे प्राइजेस की बात कर रहे हैं, उसने प्राइजेस कर लिए। यहाँ पे डिफिकल्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कैरिड ऑफ के, क्योंकि कैरिड ऑफ का डायरेक्टली मीनिंग होता है टू विन समथिंग। तो ही विन मोस्ट ऑफ द प्राइजेस। तो हमने यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज करी, ही कैरिड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस। So a third example is I will dash the business even without your help. Options are carry away and carry on. So recently मैंने आपको समझाया कि हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो जो कैरी अवे है, जो स्टूडेंट कैरी अवे है, कैरी अवे का हमने पढ़ा था, माय पर्सनली फेवरेट, टू अट्रैक्ट समथिंग और टू चार्म समथिंग। किसी चीज को अट्रैक्ट करना, किसी चीज को चार्म करना, उस पे हम यूज करते हैं कैरी अवे। और जो कैरी ऑन होता है स्टूडेंट, कैरी ऑन का मीन्स होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखना, कंटिन्यूटी में रखना।
सो कंटिन्यू रखना या टू मैनेज समथिंग, टू कंटिन्यू समथिंग, तो यहाँ पर कैरी अवे इज रॉन्ग. सो वी हैड फाइंड आउट द एरर. तो जो हमारे पास में रिमेनिंग है दैट इज कैरी ऑन. सो कैरी ऑन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी अवर नेक्स्ट एग्जांपल. My students always dash the work they undertake. So here we are talking about students and we are talking about the work they undertake. हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए काम की बात कर रहे हैं. ऑप्शंस वी आर हैविंग कैरी थ्रू एंड कैरी ऑफ. So what we had understand recently that we have to find the error. So carry through का मीन्स क्या होता है? डिफिकल्टी लेवल पर जब हम किसी चीज को कंप्लीट करते हैं तो हम यूज करते हैं कैरी थ्रू. एंड कैरी ऑफ का मीनिंग क्या होता है, जो हमने अभी भी कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं, टू विन समथिंग और टू डू समथिंग विदाउट परमिशन. तो अब अगर आप ये सोचोगे कि कौन से सही है तो आपको दोनों ही सही लगेंगे कि हम कैरी थ्रू भी यूज कर सकते हैं, हम कैरी ऑफ भी यूज कर सकते हैं, मैम स्टूडेंट्स विदाउट परमिशन भी तो कर सकते हैं. बट आप थोड़ा सा माइंड यूज करो. यही चीज, इसी ट्रिक में अपन फंसकर हमेशा मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं. हमें एरर फाइंड आउट करना है. बी ऑन दैट पॉइंट दैट यू हैव टू फाइंड द एरर. सो आप कैरी ऑफ को यूज स्टूडेंट के बेसिस पे नहीं कर सकते. स्टूडेंट वो होता है जो अपनी टीचर की बात को फॉलो करे. जो भी टीचर उसको कह रहा है, स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट वही होता है. यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ है कि बैड स्टूडेंट की बात कर रहे हैं या बुरा स्टूडेंट है या अच्छा बच्चा नहीं है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, ओनली स्टूडेंट्स. हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं. पॉजिटिव सेंटेंस है तो थिंक पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली. तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर का इंस्ट्रक्शन फॉलो अप करते हैं. तो हम यहाँ पर कैरी ऑफ का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई जीतने की बात हो रही है, ना यहाँ पे कोई विदाउट परमिशन की बात हो रही है. तो हमारे पास में जो फ्रेजल वर्ब बचा दैट इज कैरी थ्रू. तो वो यहाँ पे फिट सूट हो रहा है दैट डूइंग समथिंग कंप्लीटली विच इज डिफिकल्ट. सो माई स्टूडेंट ऑलवेज कैरी थ्रू द वर्क दे अंडरटेक. एग्जाम्पल नंबर 5. The thief broke into the shop and dashed all the jewelry. So we are having the options carried away and carried off. So first understand the example. Here we are talking about thief and we are talking about jewelry. So thief की बात कर रहे हैं, चोर की बात कर रहे हैं, jewelry की बात कर रहे हैं, valuable item है jewelry. So इसमें हम सबसे पहले error detect करते हैं. Carried away. Student, carried away हमने पढ़ा है. Carried away is the past form of carry away. So carry away, my personal favorite, to attract something, to charm something. So here we are not talking about any attractive thing or any charming thing. So this is cancel out. ये करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ पर नहीं यूज हो सकती है. सो व्हाट इज रिमेनिंग? कैरिड ऑफ. रिमेनिंग फ्रेजल वर्ब इज कैरिड ऑफ. सो दिस इज करेक्ट एंड ऑल्सो. सो दिस इज करेक्ट एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ कैरिड ऑफ इज टू विन समथिंग. तो हम यहाँ पे जीतने की कोई बात नहीं कर रहे हैं, बट इसका अनदर मीनिंग यहाँ पे यूज करेंगे हम, टू टेक समथिंग विदाउट परमिशन. तो थीव ऑलरेडी पूछ के तो लेने वाला नहीं है वो चीजों को, तो यहाँ पे परफेक्ट सुटेबल यहाँ पे बैठेगा कैरिड ऑफ. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग. We dash our plan without any difficulty. So here we are talking about plan and without any difficulty. बिना difficulty के हमने plan को किया. क्या किया? So let's see. Phrasal verb हमारे पास कौन कौन सी है? Carried away and carried out. Carried out या carried away. So carried away को आपको पता है normally कि carried away का means होता है to charm something, to attract something. और जो carried out होता है student, that is to follow something basically. So we followed our plan without any difficulty or we carried away our plan without any difficulty. So its correct answer will be carried out without difficulty.